हाय नमस्ते, मैं वत्सला सिंह VOA इंडिया से। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मिस्टर नरेन भट्ट, रिसेंटली रिलीज 3-2 के राइटर। Congratulations सर ऑन द सक्सेस ऑफ द फिल्म एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला। Thank you so much. It's a pleasure being here. सर सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब बनता है दोबारा कि बहुत ही अच्छा फिल्म कर रही है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, ऑडियंस ने बहुत ही अप्रिशिएट और एक्सेप्ट किया है। सो बिफोर वी टॉक अबाउट द फिल्म, आई वुड लाइक टू एक्चुअली आस्क यू आपकी बॉम्बे जर्नी के बारे में। तो जो मैंने जाना पढ़ा उससे पता चला आप भावनगर से हैं, गुजरात से हैं, वहाँ पे इंजीनियरिंग की, MBA के लिए आप मुंबई आए। तो फिर वहाँ से राइटिंग का किस्सा कैसे शुरू हुआ, अगर आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताते। एक्चुअली मेरी जर्नी तो भावनगर से ही शुरू हुई थी। तो आई वॉज अ प्ले राइट, मैं नाटक लिखता था, स्कूल में था तब से लिखता था। एंड जब कॉलेज में आया तब मैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्ले राइट था। तो अगर एक यूथ फेस्टिवल होता था उसमें 10 नाटक है तो उसमें से 2-3 मेरे ही लिखे हुए होते थे। और बहुत सारे नाटक लिखे मैंने कॉलेज के दौरान। देन आई वेंट टू वडोदरा, ओके, एंड देयर आई डिड माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। So there also I did a lot of theatre, and my plays were always musical. So I used to write songs also for them. So I did theatre in Baroda, and then I came to Bombay to do MBA. And after doing the MBA, I started my corporate career. So I was a business consultant, and I was a business consultant in a very niche domain. I was an IT consultant for insurance industry. उसके बाद में after a point I started realizing that because I have been a playwright, a songwriter all my life, I am a creative person and I will not survive in this corporate world. Okay, it's not for me. I mean, there is nothing wrong with it. There are some people who whose calling is that, and they can do some really innovative things there, but it was not for me. So I realized that I need to break out of this. So I started writing along with my job, because surviving in Bombay is always difficult. And I wrote plays, I started writing commercial theatre, I started writing television, I started writing films that never got made. And I was doing everything to hang on to something, to find something to hang on to, and so that I could leave my job and start doing writing full time. So then slowly it started happening. My television shows sort of started. So I left my job and I got into television. By that time I also wrote a Gujarati film with my friend Bhavesh. And that did very well. It was called Bayar. It's a big hit, and it's re-releasing on 30th. So from there, that journey also started. I wrote then a lot of Gujarati films, a lot of songs for Gujarati films. So I've written around 35 music albums by now in Gujarati and Hindi both. And I started writing Tarak Mehta then around 2011 or 12. And then because it's like even then it was #1 show in television, so it worked really well for me, because I could compensate my leaving the corporate job and the finances part of it. Then I started writing Hindi films, and then I started writing OTT, and then sort of all these things happened. So yeah, I mean, I've written a lot. And across mediums, across languages, I've written songs, I've written Gujarati films, Hindi films, OTT, television, and of course theatre. So it has been a long journey, yeah. और आपने 4 साल शायद अपने काम के साथ आपने रात में लिखने का भी समय जो निकालते थे, तो 4 साल आपने ऐसे किया। फिर उसके बाद आपने फाइनली जंप की वो शिप और कमिट किया फुल टाइम टेलीविज़न को। तो
वो डिसीजन, वो कॉन्फिडेंस किस प्रोजेक्ट से आया? और मैं तारक मेहता के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहूँगी। आज भी पॉप कल्चर में उसके रेफरेंसेस, मीम्स बनते रहते हैं, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो स्त्री 2 के राइटर हैं या जिन्होंने मुंजिया लिखी है, भेड़िया लिखी है, वो तारक मेहता के वन ऑफ द राइटर्स भी थे। Yeah, so see, I'll tell you, when I started writing television, initially that time was a very tricky time because it was post meltdown in 2008. Okay, so a lot of channels were in a crunch. So couple of shows that we developed for one particular channel, that channel only closed down. और दूसरे भी कुछ शोज़ कोशिश की पर बने नहीं। और शो बनाने के लिए हमेशा पहले एक पायलट एपिसोड बनता है उसका। तो मैंने बाय दैट टाइम इतने सारे पायलट एपिसोड्स लिखे थे कि मुझे बोला जाता था कि तुम्हें तो प्लेन उड़ाने को मिलेगा तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा, इतने सारे तुमने पायलट्स लिख लिए। सो या आई मीन धीरे धीरे करके देन फाइनली a show came. It was called Bhai Bhaiya और Brother. Okay, so it was with Vipul Amrutlal Shah and Deven Bhujani. So मुझे लगता था कि भाई देवेन भाई ने सारा भाई वर्सेस सारा भाई किया है, विपुल अमृतलाल शाह is the director of आंखें and Namaste London and all. So I was in good company then, and that project sort of gave me the confidence to leave my job. So I left my job and the show sort of ended in 2 months. So then I didn't know what to do. I started writing random episodes of crime shows like Southern India and all, and whatever came my way. Slowly I got into other projects, and by that time Tarak Mehta also happened. So that's when the whole thing gaadi patri pe aa gayi, as they say. ये जो स्ट्रगल का आपका फेस था या जिसमें चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? बिकॉज आई थिंक वो क्रिएटिव इंडस्ट्री और या जो मुंबई में काम करने वाले लोग हैं सबकी यही कहानी है। तो हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ गोइंग? कि सी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम थिएटर, आई रोट अ लॉट ऑफ थिएटर एंड लॉट ऑफ प्लेस, एंड वो एक प्ले आप लिखते हो उसके हज़ारों शोज़ भी होते हैं। तो वो आप देखते हैं कि आप जो लिख रहे हैं उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है आपको दिखने को मिलता है। इट्स अ मीडियम ऑफ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। तो अगर वो फ़नी है तो लोग हंसेंगे, अगर वो इमोशन वर्क कर रहा है लोग रोएंगे, जो भी है वो आपको सामने दिख जाएगा। तो मैंने वो सालों तक अपनी राइटिंग में देखा हुआ था, तो मुझे इतना तो पता था कि मुझे वो वाली फाइट नहीं है टू प्रूव माई सेल्फ एज अ राइटर। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि मैं सही लोगों के साथ सही प्रोजेक्ट में जाऊँ, बिकॉज आई नेवर डाउटेड माई सेल्फ एज अ राइटर। बिकॉज वंस यू डू थिएटर यू रियलाइज दैट यू अंडरस्टैंड द मीडियम, यू अंडरस्टैंड how to craft the scenes and how to make people laugh, how to make people cry, how to craft narratives, stories कैसे बनानी है, एक पूरी एक holistic story, उसमें characters के arcs कैसे बनाने, वो सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है। आप जितना पढ़ते हैं, आप जितना लिखते हैं उससे, और spontaneous medium में अगर आप लिखते हैं तो आपको validation immediately मिल जाता है। तो वो उससे validation से आपको हमेशा confidence मिलता है, और इसलिए वो कॉन्फिडेंस आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग, एंड ऑब्वियसली आई मीन माय फैमिली सपोर्ट दैट आल्सो केप्ट मी गोइंग। सो दैट्स हाउ समवेयर आई मैनेज टू हैंग इन देयर। एंड फिर वो कौन सा प्रोजेक्ट था जहाँ लगा कि अब नाउ विद हियर वी हैव अराइव्ड सॉर्ट ऑफ? वो तो अभी भी नहीं लग रहा। वी हैव अ eternal feeling of being outsiders here. I especially have. I don't know why. मतलब अभी तो लोग बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी तो ऐसा बोल सकता, but I mean it is there. Even after Stree 2. Yeah, even after Stree 2. Talking about Stree 2, क्या कैसा लगा ये रिस्पॉन्स जो रिसीव हुआ है since I think Independence Day from the release? Has it been overwhelming? Yeah, of course it's overwhelming because see, I mean, I have seen success all my life. My first film only was a super hit in Gujarati and thousands of people messaged me. Bala was a very big hit. I got awards for it. My songs are always
top of the charts, and people still play them and message me that I listen to this song 100 times a day and things like that. So it was not new to me, but the magnitude of success and especially the timing, because that is quite overwhelming, because post pandemic the world was in a flux. तो समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि किस टाइप का सिनेमा चलेगा. कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी छोटी फिल्में सर्वाइव ही नहीं करेगी, अभी सिर्फ बड़ी फिल्मों की या बड़े स्टार्स की एक्शन फिल्में होगी वही थिएटर में आएगी, बाकी सब ओटीटी पे जाएगा. समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, लोगों की सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या देखना है, किसकी टिकट लेंगे भी कि नहीं लेंगे. तो वो वाले टाइम्स में हम लोग ये फिल्म लिख रहे थे. तो सभी डाउटफुल थे, और ऑफ लेट एक ऐसी फीलिंग पूरी इंडस्ट्री में आ रही थी कि भाई अगर आपकी स्पेक्टेकल बहुत बड़ी फिल्म है या बहुत बड़े स्टार्स है या एक्शन है तभी आपकी फिल्म चलेगी. सिर्फ एक नीट स्टोरी टेलिंग होगी या ह्यूमर होगा तो उससे नहीं चलेगी. ऐसा एक फीलिंग सिंक इन हो रहा था. कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि अब दुनिया बदल गई है, अब लोगों का टेस्ट बदल गया, उनको यही देखना है, उनको बस एक्सट्रीम एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट ही चाहिए. उनको ज़रा भी आप थीमेटिकल स्टोरी टेलिंग या मैसेजिंग या वो सब अब कुछ नहीं चलेगा. तो ये वाले टाइम में ये वाली सारी मिथ्स को ब्रेक करते हुए ये फिल्म को जो सक्सेस मिली है, तो दैट इज़ क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर अस. एंड दैट समवेयर मुझे 2-3 दिन से इंडस्ट्री के भी जितने भी लोग मिलते हैं वो भी दे आर ऑल सेइंग दैट दिस फिल्म हैज़ सॉर्ट ऑफ, उनको भी एक नया कॉन्फिडेंस मिला है कि हम जो कर रहे थे वो सही था और अभी भी आगे करते रहेंगे. तो देयर इज़ a scope for good storytellers, good actors, good directors and all. You don't only need to do like action. तो फॉर्मूला नहीं है किसी चीज़ का, तो उसको भी इसने एक डिस्करेज किया. जब आप मुंजिया या भेड़िया जैसी फिल्म्स लिखते हैं, स्पेशली मुंजिया, उसकी जो कहानी है कोंकण रीजन पे बेस्ड है और एक वर्ल्ड क्रिएट किया है जो फोकलोर पे आधारित है. तो ऐसी कहानियाँ लिखने में, या हम स्त्री 2 के हॉरर की बात करें जो सरकट एक आतंक है, तो इसके लिए आप लोग रिसर्च करते हैं, कहाँ से ये हॉरर की जो स्टोरीज़ हैं या लेजेंड्स हैं उनको गैदर करते हैं, एंड डज दैट देन इंस्पायर योर राइटिंग? Yeah, obviously. I mean, we do a lot of research. I specifically do lots and lots of research. कि मैं जो फिल्म लिखने वाला होता हूँ उसके जोन में घुसने के लिए या उसके ट्रोप समझने के लिए उस जॉनरा में जितनी भी चीज़ें होती है आई एंड अप रीडिंग देम और वॉचिंग देम. सो आई मीन आई विल टेल यू, फॉर भेड़िया आई थिंक आई हैव सीन ऑल वेयरवुल्फ मूवीज एंड मोस्ट ऑफ द गुड वेयरवुल्फ नॉवेल्स. Okay, or I mean similarly for Stree also we searched a lot for the headless horsemen के जो legends है, जो Sleepy Hollow में भी है और काफ़ी सारी जगहों पे उसके mentions भी है, but we wanted to use it in another way that he is a headless person but his head is there. Okay, so he takes it in his hands, हाथ में लेके घूमता है. अगर हाथ में लेके घूमता है तो फिर उसका यूज़ क्या है? तो फिर उसका यूज़ भी हमने फिर कि ही यूजेस इट एज अ वेपन, वो अपने हथियार की तरीके से यूज़ करता है और फिर उसके अंदर उसका कैमरा भी और CPU भी है, तो वो देखता है और वो ऑर्डर करता है, फिर बॉडी पीछे से आती है. सो आई मीन ऑल दोज थिंग्स इवॉल्व्ड आउट ऑफ इट. एंड एनीवेज आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च. आई मीन वी वेंट टू अरुणाचल प्रदेश, हम लोग बहुत लोगों से मिले थे भेड़िया के पहले, और वहाँ से हमें जानने के लिए मिला कि ये ऐसा एक लेजेंड है यापूम करके उधर का. उसके ऊपर फिर हमने वो शेप शिफ्टिंग लेजेंड के ऊपर से ये भेड़िया का जो बेसिक प्लॉट था दैट वी वीव्ड इन. ये मुंजा बेसिकली जो कोंकण का एक लेजेंड है, इट्स अ फोक स्टोरी. एंड आज भी कोंकण के बहुत सारे बागों में उसकी पूजा होती है, एक पेड़ पे बांधा हुआ होता है, और हर शादी में एक सेरेमनी होती है सोड़ मुंजा की, कि वो मुंजा बेसिकली चोटी को कहते हैं जो बच्चे की बांधते हैं जब उसको यज्ञोपवीत संस्कार उसका होता है, और जब उसकी शादी है तो वो छोड़ी जाती है तो उसको सोड़ मुंजा बोलते हैं.
तो ऐसा बच्चा अगर मर जाए तो देन नो ही सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ मॉन्स्टर एंड फिर उसको एक पेड़ के साथ बांध के उसकी पूजा की जाती है कि हमारी रक्षा करना तुम, बट इफ़ ही गोज़ रोग देन व्हाट हैपेंस। तो वो कहानी हमारी मुंजा है। तो इसी तरीके से अलग अलग फोक लेजेंड्स में से ये कहानियाँ आती है और बहुत लोगों से मिलते हैं हम लोग, बहुत जितना हो सके उतना रिसर्च करते हैं। आई मीन बाला, यू कैन सी माई हेयर आर स्टिल इंटैक्ट एंड आई वॉज राइटिंग अ फिल्म अबाउट अलोपेशिया, एक आदमी जिसके बाल गिर रहे, हाउ ही इज फीलिंग। सो आई टॉक टू ऑल माई फ्रेंड्स के जितने भी लोगों के जा रहे थे बाल, कि क्या फील हो रहा है, तुम क्या नोटिस करते हो, आईने में देखते हो तो कैसा लगता है, कंघी देखते हो तो कैसा लगता है, नहाते हो तो कैसा लगता है जब बाल नाली में जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे हेयर वीविंग के लिए, उनसे भी मैंने बातें की कि क्या टेक्निकलिटीज़ होती है और क्या उसमें वो होता है, कौन सी चीज़ होती है कि नहीं करा सकते। तो अगर आपको बहुत हाई डायबिटीज़ है तो आप नहीं करा सकते हेयर ट्रांसप्लांट। तो दैट वी यूज्ड इन द स्क्रिप्ट ऑल्सो, दैट because then it was very easy for him to get the solution of his hair loss कि वो वीविंग करा लो ना, ट्रांसप्लांट करा लो, डलवा लो अंदर। पर then through research we came to know that if a person has high diabetes, so in the film Ayushman's character has high diabetes. So yeah, I mean we do a lot of research. Specifically, I'll tell you, I did lots and lots of research. I mean our team for Asur, Gaurav, who is my friend, he has a medical kind of a background. So I mean he was deeply into the forensic part of it. I did a lot of research for the mythological part of it, the scriptures, shlokas, ये वो असुर की कली, तो कलयुग क्यों है और वो क्या समझता है कि कल की आके क्या करने वाला है, कल की पुराण में क्या लिखा है कि कब कल की आएंगे, भगवान कल की जो 10th अवतार है, और उसको हराने के लिए कली क्या क्या कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें जितना भी शास्त्रों में लिखा है, जहाँ भी लिखा है, वो सब हमने उंडेलने की कोशिश की थी उसमें। तो हर प्रोजेक्ट में आई मीन इट्स अ जर्नी फॉर अस, एक यात्रा है जिसमें आपको ये सब पढ़ने और जानने को मिलता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल्सो। But when it comes to paranormal research, तो क्या स्कैरी होता है, नाइटमेयर्स होते हैं? क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए पैरानॉर्मल रिसर्च किया था और रियल लाइफ एंड एवरीबडी हु सीन इट, तो वो क्लेम करता है उन्होंने देखा है और इतनी कन्विंसिंग होती है वो स्टोरीज कि आपको भी विश्वास होता है कि हाँ शायद भूत पिशाच और जिन्स असल में हैं। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आपको लगता है ये रियल है? देखिए, आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आई हैव डन आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग फॉर लाइक 6-7 years of my life, and I am a very staunch believer of science. Okay, so I don't believe in ghosts or spirits or such things. So whenever I write about it, it's always manifestation of एक human fallacy जो होती है, उसका कहीं ना कहीं एक रूपक होता है। कि सरकटा क्या है? सरकटा पेट्रियार्की का मेटाफर है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ घोस्ट दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग, इट इज़ सोशल इविल दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग। ओके, हमारा भेड़िया भी था, तो भेड़िया क्या था? भेड़िया रक्षक था, वो जंगल का रक्षक था। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। एंड वी डोंट वांट टू लाइक गेट इनटू तंत्र मंत्र एंड अंधश्रद्धा एंड ऑल दोज थिंग्स. In our stories, the horror part, the supernatural part is always metaphors. And even in Stree 1, Stree is basically hunting males. Why? Because she wanted प्रेम और सम्मान. जब उसको प्रेम और सम्मान मिल जाता है एंड में, वो चली जाती है। ओके, तो वो भी एक सोशल मेटाफर ही है। तो वही है कि वो तंत्र मंत्र और अंधश्रद्धा या स्पिरिट्स या भूत या उस जोन में हमारी कहानियाँ नहीं है। ये सुपरनैचुरल एडवेंचर फिल्में हैं जिसमें थोड़े जंप स्कैर्स है। बेसिकली प्रिडोमिनेंटली एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म है ये। तो जैसे सोशल इविल की आप बात कर रहे हैं, एक जो क्लाइमैक्स सीन है स्त्री 2 में बहुत मूविंग है। मैं लेटर बॉक्स पे जब रिव्यूज़ पढ़ रही थी, आई ऑल्सो फेल्ट इट जब मैं मूवी देख रही थी।
पर्टिकुलरली वो सीन, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट जो हमारा अभी इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोलकाता को जो इंसिडेंट है, तो जब वो मोबिलाइजेशन औरतों का दिखा स्क्रीन पे, तो लाइक मी अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फाउंड इट वेरी मूविंग। तो टाइमिंग ऑब्वियसली उस तरह बैठी, और जो फुट सोल्जर्स आपने दिखा, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती मूवी के बारे में भी, तो आइडिया आप क्या था आप लोगों का? नहीं, आइडिया वही था कि when we say there is this dialogue that Pankaj Tripathi says that वो इन्फ्लुएंसर है, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, ओके, सो ही इज़ अ बिगट एंड ही वांट्स टू इंक्रीज हिज फॉलोइंग, ही वांट्स टू ब्रेन वॉश पीपल। वो मर्दों को ब्रेन वॉश करके अपने जैसा बनाना चाहता है, और अपने जैसा का मतलब क्या है, वो जैसा था वैसा, और उसका वर्जन ऑफ फीमेल्स क्या है जो हमने उधर जहाँ पे सरकटा रहता है वहाँ पे जो दिखाया है, ओके, कि वो वर्जन ऑफ फीमेल्स ये है कि जो सफ़ेद साड़ी पहनती है, जिनके बाल नहीं है, जो केश कर्तन नहीं करती, जो मेकअप नहीं लगाती है, ठीक है, सिर्फ ऐसे बुत बनी खड़ी रहती है। और वो जो पढ़ता है उसकी बैक स्टोरी रुद्रा भैया, तो उसमें भी आता है कि उसके लिए स्त्रियों का काम था चूल्हा चौका और कपड़े धोना, और जब मर्द चाहे तब उसके साथ सोना, ओके, सो दैट इज़ हिज वर्जन ऑफ फीमेल्स। और अभिषेक का भी एक डायलॉग है कि अभी हमें कुछ करना होगा वरना ये पूरे शहर को 200 साल पीछे धकेल देगा। सो दैट्स द रिग्रेसिव माइंडसेट फ्रॉम विच दिस गाय इज़ कमिंग फ्रॉम, बिकॉज एनीवेज इज़ एन एंशिएंट सोल। एंड जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि वो जो शैकल्स उसने बनाए हैं, जो ब्रेन वॉशिंग है, उसको तोड़ने के लिए नो, द फीमेल्स हैव टू कम टुगेदर, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल्स। इसीलिए हमने अर्धनारीश्वर का भी एक रूपक रखा है कि स्त्री और पुरुष दोनों जब साथ में आएंगे, शिव और शक्ति, तभी जाके ये पितृसत्ता ताकतों को हरा पाएंगे। तो इसलिए वो VFX वाला सीन है, एस्टॉनिशिंग है कि राज और श्रद्धा एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं, नो, इट लुक्स लाइक 2 person into 1 body, बट इवेंचुअली द मेटाफर इज दिस। जैसे आप कमिंग ऑन टू द VFX पॉइंट, I was very impressed seeing the vision of the film कि ये यहाँ जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है। and recently I'd also watched Deadpool and Wolverine, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा था। इन कॉन्ट्रास्ट ये मुझे फिल्म बहुत एंटरटेनिंग लगी थी कि एक तो हॉरर है, देन कॉमेडी है, देन द क्लाइमैक्स आई रियली एंजॉयड। तो जब जहाँ VFX की बात है, जो चीज़ बियॉन्ड एक्टर्स है, तो एज अ राइटर आप क्या VFX टीम के साथ कॉन्स्टेंटली इन कॉन्वर्जेशन के साथ, डायलॉग के साथ वो चीज़ें लिखते हैं? एक्चुअली सी हाउ इट वर्क्स इज दैट इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो मैं प्रोसेस का पार्ट रहा हूँ, और अमर तो पूरी प्रोसेस में ही रहता है, एंड ही इज़ ऑलवेज विथ मी व्हेन आई एम राइटिंग। सो आई मीन उसके थ्रू मुझे पता चलता है कि क्या क्या पुश कर सकते हैं इसमें, विजुअली क्या क्या कर सकते, कितनी लिमिट तक उसको पुश कर सकते हैं। अगर मूंजा है और वो पूरा VFX में, इफ़ वी आर क्रिएटिंग द होल कैरेक्टर थ्रू VFX, देन व्हाट ऑल ही कैन डू। वो पेड़ों पे कूद सकता है, वो पेड़ के अंदर समा सकता है, वो खुद पेड़ एक मुंजा बन सकता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे हमें पता चलती है कि एक्सपीरियंस से, कि हमने भेड़िया किया था, उसके बाद मुंजा कर रहे थे, तब पता था हमें कि ये चीज़ें हम कर पाएंगे। एंड सिमिलरली व्हेन वी आर डूइंग स्त्री 2, तो देयर ऑल्सो वी सॉर्ट ऑफ न्यू दैट कितना इसको पुश कर सकते हैं, और VFX के थ्रू क्या क्या चीज़ें उसको दिखा सकते हैं। बिकॉज वॉट वी वॉन्ट टू डू प्रिडोमिनेंटली इज़ टू यूज़ इट वेरी वाइजली, बिकॉज VFX इज़ अ वेरी कॉस्ट इंड्यूसिव प्रोसेस। तो जो वर्ल्ड ओवर आप जो देख रहे हैं डेडपूल वर्सेस वोल्वरिन या दूसरी मार्वल फिल्मों के, वो बहुत कॉस्टली है, ओके। हमारे बजट्स इतने हाई नहीं हैं, स्पेशली हिंदी फिल्मों के, पर जो गिवन बजट है उसके अंदर हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंज होता है हमारे सामने, बट इफ़ यू डू इट स्मार्टली देन आई थिंक इट वर्क्स विथ ऑडियंसेस। कोई आपके पास रिकमेंडेशन है हॉरर में? आप यू सेड आपने बुक्स पढ़ी थी ड्यूरिंग राइटिंग भेड़िया, तो कोई बुक्स रेकमेंड करना चाहते हैं, मूवीज रेकमेंड करना चाहते हैं दैट पीपल कैन विजिट एंड वॉच? नहीं, बुक्स और मूवीज तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इफ़ आई स्टार्ट रेकमेंडिंग देयर इज नो एंड टू इट, बिकॉज इन ईच जॉनरा देयर आर लाइक hundreds of books.
So I'll just tell you the books that I like to read. Currently, I'm reading Ryan Holiday's books on Stoic philosophy and Marcus Aurelius's meditations, because they are mainly about being detached from the pleasure you derive from the success. So there's a lot of success, तो आप अभी अपने आप को डिटैच करने की कोशिश so, कर रहे हैं. So see, I mean, I have experienced in my life that it's very easy to handle failure, because you always have the motivation to prove yourself, but its most difficult part is to handle success. During your research, was there a legend, कोई ऐसा legend था horror या paranormal supernatural जो बहुत spooky था, which stayed with you? अगर आप share करना चाहें. बहुत सारे legends ऐसे, especially when we went to Arunachal, their stories we don't know actually. Some of the legends were very, very scary when they used to tell us their legends. I don't remember the names of the legends, but some of the stories were really creepy. That because their culture evolved from being hunter-gatherers, okay, and their stories also revolve around it. So there was a legend where they told us a legend where the hunters go in the forest, and there is a forest within forest which is kind of an enchanted एक magical type का एक forest है, और वहाँ पे जो एनिमल्स है वो बात कर सकते हैं, और जिस एनिमल को वो हंट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो एनिमल आपको उस आवाज़ में बुलाता है, आपके किसी रिश्तेदार की आवाज़ में. सो प्रोबेबली if you are hunting a bear, suddenly bear will speak in your brother's voice. And still some hunters वो कि ये भ्रम है, इल्यूजन है, ऐसा सोच के उन लोगों ने वो bear मार दिया, and when they came back home next morning, his brother was dead. Okay, so I mean, such spooky stories we heard, very, very and it's like unbelievable. There are a lot of stories like that, but I mean, these are gut wrenching horror stories. One last question. जो डायलॉग्स थे इस फिल्म में, मतलब मज़ा आ गया वो दिखते हुए भी, डर रहे हैं एक मोमेंट और फिर एक मोमेंट हंस रहे हैं, तो इस तरह की डायलॉग राइटिंग का प्रोसेस क्या रहता है, कितना समय लगता है वो एक बैंग ऑन कड़क? तो जो डायलॉग में जितना मज़ा आता है ना, इतना ही डिफिकल्ट प्रोसेस है कि मतलब सी वन पंच लाइन यू हियर फॉर दैट राइटर हैज़ रिटन लाइक 6 or 8 लाइन्स, और उसमें से एक उसने सिलेक्ट करके उसमें डाली है, उसमें से भी अगर फिर फीडबैक ऐसा आ रहा है कि ये फ़नी नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा है, then you write 10 lines again for that one particular line, because you wanted to make a funny line or you want people to laugh on them. Sometimes it just happens that it ties in with the character so nicely, okay, and it becomes funnier. So yeah, it's a very it looks very nice when you see, but it's a lot of hard work. So many amazing lines, so many. And I mean, I am eternally grateful to Amar, because he has always been there. He has been my bouncing board कि ये 10 लाइन में उठा के उसके ऊपर डालता हूँ, और he says that ये सही है, ये रखते. Okay, so I mean, it's also a teamwork. Comedy basically works on 4 pillars. Okay, one is the written line, one is how director directs it, and one is the guy who's speaking it. Say Raj is speaking it, and one is the guy who's reacting to it. That is the point when people laugh. So maybe say Abhishek or Apar Shakti's character, when they react to it, the funny thing whatever Raj has said, so then comedy actually happens. So yeah, it's completely teamwork. Very, very difficult. Looks easy, but very difficult. Looks easy, but very difficult. And hence, like, I feel horror comedies all the more difficult. आप डरा भी रहे हैं, आप हंसा भी रहे हैं. Yeah. So see, I mean, there are a lot of tropes that I use for comedy, because I have learned over a period of time. इतनी मैंने comedies लिखी है कि वो tropes जो है वो मैं सारे साथ में लेके चलता हूँ और सबके यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पे word play हो गया, कहीं पे आप
कोई सार्काज़म वाला कमेंट हो गया, कहीं पे जो कॉमेडी का एक इक्वेशन होता है कि एक म्यूल होता है जिसके ऊपर आप जोक क्रैक करते हैं, ठीक है। तो हमारा एटर्नल म्यूल है अभिषेक है, जिसके ऊपर मोस्टली लोग जोक्स क्रैक करते हैं। इसमें अपार भी है, बहुत सारे जोक उसके ऊपर भी है, बट आई मीन you need to plan it in such a way that it becomes eventually funny for people. If you had to give an advice to the writers in the industry, आप क्या कहेंगे उनसे? मैं उनको वही कहूँगा कि देखिए, एक तो नए राइटर्स होते हैं ना, उनको मैं पहले तो डिस्करेज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितना हार्ड वर्क और जितना पेन जो प्रोजेक्ट्स नहीं बनते, जो फिल्में या कहानियाँ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसका जो पेन है वो हर आदमी उसको सहन नहीं कर पाता। मैंने लोगों को टूटते हुए देखा है, मैंने राइटर्स को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है, मैंने राइटर्स को अपनी सोशल लाइफ बिगाड़ते हुए देखा है, मैंने राइटर्स को एडिक्शन में चले जाते हुए देखा है, मैंने उनको अपनी डोमेस्टिक लाइफ बिगाड़ते हुए देखा है, मैंने रिलेशनशिप टूटते हुए देखे, मैरिजेस टूटते हुए देखे, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। ओके, तो इसलिए मैं पहले डिस्करेज करने की कोशिश करता हूँ कि मत बनो राइटर, कुछ और बन जाओ, इजी कुछ चीज़, मतलब इन्फ्लुएंसर बन जाओ या कुछ और कर लो जो आपको इतनी यातना ना दे। अगर आपने एक रील बनाया, उस पर लाइक्स नहीं है, तो आप कुछ और कर लेंगे ना, इसमें इतनी यातना नहीं है। पर आप व्हेन यू आर अ राइटर, यू सिट इन अ कॉर्नर, यू थिंक दैट एंटायर वर्ल्ड विल अप्रिशिएट दिस, ठीक है, हर आदमी इसको, और ये दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर मेड। ओके, एंड व्हेन समवन रिजेक्ट्स इट, इट्स रियली पेनफुल। और इसीलिए वो टॉलरेंस हर आदमी में नहीं होता, इसलिए मैं डिस्करेज करने की कोशिश करता हूँ। बट आई मीन दोज हु आर एक्चुअली टैलेंटेड, दे डिनाई दैट डिस्करेजमेंट, और वो फिर भी लगे हुए रहते, और फिर देन दे मेक समथिंग ऑफ देमसेल्व्स। सो या, आई मीन द ओनली एडवाइस दैट आई कैन गिव राइटर्स इज रीड। ओके, आप मतलब फिल्मों से नहीं आती है, फिल्में लाइफ से आती है, और उनको लिखने के लिए आपने जो पढ़ा होगा वो काम में आएगा, आपने जो देखा हुआ वो नहीं आएगा। सो रीडिंग, आई थिंक इफ यू रीड like 100 words, you will be able to write one. On that note, thank you so much, Niren sir. Thank you for your time. Thank you so much. Good luck for Stree 2. I have a feeling there'll be more success parties, like I said in the beginning. I hope so. Thank you, sir. Thank you.